यस मैम, यस मैम. चलो शुरू करते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूसली इन डिस्कशन and very recently you have seen that Maharashtra state legislature has decided to start contempt proceeding against Kangana Ranawat and Arnav Goswami for their statement which they made against certain MLAs of the state of Maharashtra. तो उसको लेकर के उन्होंने बोला कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाना है. उस दिन भी मुझसे किसी ने इसके बारे में एक सवाल पूछा था. आई डोंट रिमेम्बर कि तुम्हारे क्लास में था कि कहीं और था. बट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन एक्चुअल में क्या होता है, कब लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस or the MPs and MLAs, and how basically the house and the members are going to exercise their privilege. उस दिन मैंने आपको रमा देवी का केस बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ आजम खान मेड अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस व्हेन शी वाज वर्किंग एज द एक्टिंग president of the Lok Sabha, and he made certain remarks and it created a lots of fury amongst the member, especially the women member, and then it was demanded that for the breach of the privilege a motion should be introduced and action should be taken against Mr. Azam Khan, who was the member of the house and who is the member of the house of Lok Sabha. So now अभी भी है ना? हाँ अभी भी है. तो अब हम लोग इसमें देखते हैं. पहले let's see what basically the provisions are going to say, and then subsequently we will decide the case laws, because there are certain case laws which are very very important to be discussed here. So let's open firstly Article 105, and remember the corresponding article in the case of state legislature is Article 194. So 105 and 194, the only difference is 105 is dealing with parliamentarians and 194 is going to deal with MLAs or the member of the legislative assembly. तो जरा 105 खोलना आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 105. जब आप 105 पढ़ते हो या इसको देखते हो तो इसमें हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है. पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा. अब देखो एक वेग टर्म यूज किया गया है, पावर्स, प्रिविलेजेस. तो ठीक है, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द प्रिविलेजेस, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट द थर्ड एस्पेक्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटसेट्रा. पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ. तो जब आप इसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़ते हो ना तो ये क्लियर कह रहा है कि this article is basically going to deal with the privileges and powers of three main categories. The first one is the power and privilege of the parliamentarians. The second one is the power and privileges of the members of the parliamentary committees. And the third one is the power and privilege of the entire parliament, जिसको इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज किया है the houses of parliament. तो इन सब को प्रिविलेजेस दिए गए हैं. तो पहली बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ मेंबर का प्रिविलेज नहीं है, ये पूरे सदन का प्रिविलेज है, और साथ ही साथ ऑल दोज हु आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द कमेटी दे आर आल्सो प्रिविलेज्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 105. तो किस तरीके का प्रिविलेज और किस तरीके का प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा अपने डे टू डे बिहेवियर में, हम लोग बहुत चीजें, अरे भाई तुम तो प्रिविलेज क्लास हो. तो प्रिविलेज क्लास का मतलब होता है यू आर एंजॉइंग सर्टेन फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज और बेनिफिट्स which are normally not available to the normal citizens, या जिसको कि आम आदमी कहते हैं, उसको अवेलेबल नहीं होता. जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में when we were discussing article 361 we have also discussed the powers and privileges of the president and the governors of the state. So they are also enjoying certain kind of privileges. तो ये जो privilege होते हैं ना, ये बड़े important होते हैं, और privilege देने के पीछे एक मकसद होता है. जैसे आप लोगों से मैं बार बार बहुत जोर देती हूँ एक चीज पे कि what is the jurisprudence. So there is a jurisprudence of privilege also. So what is the jurisprudence of privilege? The jurisprudence of privilege is certain privileges are given to certain sect of people so that they could enjoy and they could perform, not enjoy, they could perform their functions properly.
एक चीज है कही जाती है, पावर रेजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जब आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ो तो बहुत बढ़िया है। आपका मन करे तो कभी आप चाणक्य सीरियल भी देखा करो, अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल, और अब आपको समझ में आएगा। उसमें चंद्रगुप्त को ने चाणक्य से कहा कि आपने मुझे राज दिया तो मुझे क्या राज दिया, मुझे इस राज में कोई सुख ही नहीं है। तो चाणक्य ने उनसे एक बात बोली चंद्रगुप्त से, चाणक्य ने बोला कि राजा के भाग्य में सुख नहीं होता, उसकी प्रजा का सुख और उसकी प्रजा का दुख ही उसका सुख और दुख होता है। तो राजा को अगर आज आप रिप्लेस कर दीजिए तो हम एक पार्लियामेंट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट वाज द रोल व्हिच वाज अर्लियर assigned to the kings, presently that is being done by the parliamentarians. So being a parliamentarian, जो लोग चलते हैं ना कि क्या बोलते हैं बाहुबली, महाबली और विधायक, एमपी, एमएलए, ये बेसिकली इसलिए नहीं होता है। आपको बीकन इसलिए दी जाती है या आपको प्रिविलेजेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप लोगों के काम को इफेक्टिवली कर सकिए। लेकिन मैंने एक चीज उस दिन जब मैंने आपको त्रिगुण थ्योरी बताई थी तो मैंने आपसे कहा था आप कभी भी इसको अप्लाई करोगे then you will reach on a correct conclusion, but most probably most of the time the people misunderstood the things in the way that suits them in a better way। अगर आपको उस दिन ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जैसे पानी जाता है वैसे आदमी की ऊर्जा जो है नीचे की तरफ अपने आप जाती है, यानी उसके अंदर जो तम की प्रवृत्ति होती है वो अपने आप आती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको ताकत लगानी पड़ती है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल पाथ होता है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना होता है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको इसलिए चीजें बताई कि प्रिविलेजेस दिए तो गए इसलिए कि ये एमपी एमएलएज लोगों का काम और अपना काम जो है साइंड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे कुड परफॉर्म इट परफेक्टली। सो व्हाट इज द jurisprudence ऑफ privilege? The jurisprudence of privilege is these types of privileges should be exercised by the MPs while performing their duty as a parliamentarian। अब parliamentarian की ड्यूटी क्या होगी? The duty of the parliamentarian is basically as the representative of their constituency, and simultaneously because they take oath to defend, protect and prevent the constitution, so basically to helping in implementing the spirit of the constitution is the basic purpose, the basic role of the parliamentarian। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि चीजें कैसे चेंज हुई, but let's see what basically the constitution is going to talk about these privileges which are available to the parliamentarians। So let's read subclause 1। Subject to the provisions of this constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament। This is something which is very very important, क्योंकि इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, subject to provisions of this constitution, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और दूसरा कह रहे हैं एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी जाना पार्लियामेंट या अदरवाइज आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के रूल्स होते हैं। What is the purpose? The purpose is these rules are basically framed for the convenient transaction of the business of house। जैसे हाउस कैसे चलेगा, आप लोगों ने कभी सदन की कार्रवाई देखी होगी तो उसमें कोई बीच में बोलता है ना कुछ, तो स्पीकर कहते हैं नो एज पर द रूल यू कैन नॉट डू इट, तो मेंबर कहेगा नहीं रूल फलाना फलाना मुझे इसके लिए अनुमति देता है। तो वो जो रूल है, वंस यू आर गोइंग टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज रूल्स आर नॉट मेंशन्ड हियर बट दे आर prescribed in the form of the parliamentary rules, and basically the parliament or both the houses of parliament they works according to those rules and regulations। तो internal mechanism जब आप administrative law पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि in any setup there are certain set of rules so that the function of that particular department or that particular setup could be performed प्रॉपरली। तो इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अपने लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा एक चीज, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब सदन चलता है तो चाहे विधानसभा हो चाहे आपकी लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
आप देखिएगा स्पीकर की चेयर के सामने एक राउंड टेबल लगी होती है, ठीक है। उस राउंड टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठ करके नोटिंग करते रहते हैं, वो टाइप करते रहते हैं और कुछ कुछ कागज स्पीकर्स को देते हैं या वो कुछ कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो जो कहते हैं उसको करते, जो काम करते हैं उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में उन लोगों का क्या काम होता है? वो इन वर्बेटिम टाइप करते हैं कि किस सदस्य ने क्या चीज बोला, राइट। तो आप जब जाओगे ना कभी पार्लियामेंट में, आप लोग जाना वहां की लाइब्रेरी वगैरह को जब आप एक्सेस कर पाओगे ना, तो आपको किसी भी सत्र का जो सत्र में जो भी अलग अलग एमपीज ने जो जो चीजें बोली थी उसका आपको रिकॉर्ड वैसे ही मिलता है जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग होती है, दे आर स्पेशली स्किल्ड पीपुल, दे कैन नॉट ऐड समथिंग, दे कैन नॉट रिमूव समथिंग, दे आर सपोज टू टाइप द थिंग्स इन वर्बेटिम। जैसे जैसे लिख बोलते हैं वैसे वैसे, कोई भी एमपी जैसे जैसे बोलता है उसको वैसे वैसे ही वो लिखते हैं। इसीलिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो आपने देखा होगा स्पीकर जो है या जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो कहेगा ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो रिकॉर्ड में ना जाने का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड में ना जाने का मतलब ये हुआ कि जो उस समय एमपी ने बोला है वो उसको नहीं बोलना चाहिए था। और रिकॉर्ड में नहीं जाएगा का मतलब होता है कि जो बैठ करके टाइप कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब वो उसको टाइप करेंगे ना तो उसको एक्सपंज कर देते हैं उस कंटेंट में से जो कि बेसिकली उस मेंबर के बिहाफ पे वहां पे इन वर्बेटिम टाइप्ड है। तो इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। तो इसमें एक चीज आप देखिएगा, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंटेरियंस को दी गई है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी 19(1)(a) में भी दी गई है, विच इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट दैट पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू certain restrictions which are prescribed under article 19 subclause 2। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि once you are going to talk about the parliamentary privileges, whether whatever the parliamentarians are going to speak that is subject to the restriction of 19 subclause 2 or not। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है उसको लेकर के एक चीज क्लियर है कि in a way they are basically going to enjoy absolute immunity while exercising their right to freedom of speech and expression। तो उनके ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो कि 19 सबक्लॉज 2 का रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर सदन में नहीं लगता, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका एक मतलब आप समझिएगा कि जैसे ही मैंने बोला कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, आइडियली इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले, क्योंकि मैंने अभी आजम खान का एक एग्जाम्पल दिया था, उनके बोलने से ही विवाद हुआ था और उसको लेकर के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया गया था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली द पावर of freedom of speech and expression in a way it is unlimited for the parliamentarians, but then too there are certain restrictions। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है तो उससे प्रिज्यूम किया जाता है कि वो पार्लियामेंट्री बिहेवियर ही करेगा। हालांकि अब आप देखिए तो बहुत ही अनरूली बिहेवियर कई बार दिखाई देता है, लेकिन पर्पस क्या है कि आपको पता होना चाहिए यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, देन एटलीस्ट यू मस्ट नो दैट हाउ यू शुड बिहेव एंड व्हाट यू शुड स्पीक, हाउ यू शुड स्पीक। और इसीलिए आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और आपको क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। यहाँ प्रिविलेजेस में दे आर इम्यून एंड सो मच पावर एंड लिबर्टी इज गिवन टू देम while exercising the right to freedom of speech and expression. So obviously they are not controlled or regulated according to article 19 sub clause 2, but it is presumed that they should use the parliamentary language। इसीलिए आप इसमें एक चीज देखिएगा कि कई बार क्या होता है ना कि अब अंदर तो ये जो बोल रहे हैं उसके लिए बाहर कोर्ट में आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल दें, कुछ भी ऐसा जो शायद इनको नहीं बोलना चाहिए वो भी ये बोलते हैं, और अगर बोल देते हैं देन यू कैन नॉट फाइल अ
petition before any court, that or you cannot file a case against them before any court ki they have said something which is defamatory, which is seditious, or any other if it is going to be covered under any other clause of any other existing legislation. तो बाहर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको पूरी इम्यूनिटी होती है, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, ये किसी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं हो सकते हैं. लेकिन हाउस के पास पावर होती है कि इफ एनी पार्लियामेंटेरियन इज गोइंग टू यूज एनी लैंग्वेज विच इज बेसिकली वेरी अनपार्लियामेंट्री, देन in that circumstances or in those cases where the behavior of the members is very unruly, then in that circumstances the house itself can initiate a proceeding for the breach of privileges against such kind of parliamentarians. तो अभी आपने देखा था लास्ट जो आपका सेशन चला था उसमें आपने देखा था कि स्पीकर्स के ऊपर जो है वो कागज फेंके गए थे, उनकी टेबल से पेपर खींच करके उसको फाड़ दिया गया था और उनके ऊपर लोग कूदने की कोशिश किए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि 15-16 एमपीज को जो है सस्पेंड किया गया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. सो बेसिकली दीज पावर्स आर वेस्टेड इन द स्पीकर and in the house, that when any parliamentarian is going to involve or going to indulge in any such kind of activity, then the action can be taken against them. That is the parliamentary privileges. और इसमें आगे पहले मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको और बताती हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा. Now let's come to subclause 2. What subclause 2 says? No member of parliament shall be liable to any proceeding in any court, जो मैंने अभी आपको बताया, in respect of anything said or any vote given by him in parliament. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, any vote given by him in parliament. जैसे मान लीजिए मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आई हूँ, मुझे उसके फेवर में वोट करना चाहिए, लेकिन वोट मैंने किसी और को कर दिया, तो क्या मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग हो सकती है? क्या ये इम्यूनिटी देता है कि नहीं हो सकती? यानी अगर मैं जीत के आई हूं तो ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको वोट दूं. तो एज अ पार्लियामेंटेरियन आई एम इम्यून, इसको भी आप समझ लीजिएगा. But the political party to which I belong, they can take any kind of disciplinary action against me. That is altogether a different thing. So, as a parliamentarian, obviously, I am going to exercise my right to freedom of expression, because casting vote is also a medium of expression. So, as a parliamentarian, I am immune. But because I belong to a particular party, so the disciplinary action can be taken by that political party, but that is not going to, affect my rights as a parliamentarian, because subclause 2 gives me an immunity to cast my vote in the favor of anyone. तो ये क्या कहते हैं? Respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings. तो इसमें जो भी proceedings होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, पहले क्या होता था कि ये अभी भी होता है, आप देखिए न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, सदन में हंगामा, सदन में हल्ला, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला. अब इसमें मान लीजिए क्या होता है कि स्पीकर ने बोला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसको स्पीकर ने बोला कि नहीं ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. जैसे ही स्पीकर ने बोला कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसका मतलब है वो चीज उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, पर उसने बोल दिया क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. तो बोलने के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. स्पेशली आप याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के केस में बहुत कम केसेस अब तक हुए हैं जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन किसी मेंबर के अगेंस्ट में लाया गया हो. बट यस, इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, the assemblies has used this as a tool or as a weapon against the press, specifically when the media personnel has published something against the parliamentarian. As I gave you the example of Kangana Ranaut and अर्णव गोस्वामी, इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ मेंबर्स के खिलाफ या किसी एक दो मेंबर के खिलाफ बोला था, और महाराष्ट्र विधानसभा ने इनको बोला कि इनको हाउस में ला करके इनको पनिश करना चाहिए. तो वो क्या कर सकते हैं, कौन सी पावर्स हो सकती है, कहां तक पनिशमेंट कर सकते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी. पर इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर स्पीकर ने ये चीज बोल दी कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहिए.
और अगर वो न्यूज़पेपर में आ गया जिसको कि उन्होंने बोला है कि रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा या रिपोर्टिंग में नहीं जाएगा, then in that circumstances the house may consider it as the breach of the privilege of house. समझ में आया? यानी जो उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा वो न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहिए। और इसीलिए अब तो आप देखते हो जब लाइव रिकॉर्डिंग आप देखते हो तो सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग कह रहे हैं, जब आप लाइव देखते हो तब तो सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब आप लोकसभा या राज्यसभा में बाद में आप रिकॉर्डिंग देखते हो, अगर स्पीकर ने बोला कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो आइडियली उतना पोर्शन रिकॉर्डिंग से एडिटेड होकर निकाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा मतलब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और अगर उसको कोई पब्लिश करता है, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द हाउस हैज कैपेसिटी टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच पर्संस। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, while exercising their privilege, the house has very similar kind of power as the Supreme Court and High Courts are having in the case of their contempt. लेकिन the basic difference is, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, that the house is not a complete judicial body, but while exercising their privileged or their contempt power, they are acting as a quasi judicial body and they have all the powers of the civil court. But in the case of the High Court and the Supreme Court, because you know that only High Court and Supreme Court can initiate contempt proceeding, they have the power of the full court. वो full court होती हैं, and the basic difference between the quasi judicial and the full court or the judicial bodies is, इसमें याद रखिएगा, जो full court होगी ना वो permanently बैठती है। वो कहाँ बैठती है आपको पता है कि 30 हजारी कहाँ है, आपको पता है पटियाला कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज आर टेम्पररी बॉडी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस करते करते या लेजिस्लेटिव एक्शन करते करते अचानक से जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। कोई कमेटी बनी उसके सामने आपको लाना पड़ेगा, तो बेसिकली दे आर नॉट ट्रेन्ड, they are not full-time courts, but they have judicial powers basically up to a certain extent for the to take cognizance and to take action against those who are basically involved in any kind of contemptuous act against the against either of the house of the parliament, or sometimes against suppose a special or a specific member of the house. जैसे किसी को भी दे दिया, गाली दे दी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर दी, प्रधानमंत्री हो सकता है, गृह मंत्री हो सकता है, रक्षा मंत्री हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, राज्यसभा का कोई, मतलब कोई जो भी whoever is the part of the parliament, if they are going to make any such remarks, then in that circumstances the breach of privilege motion can be brought against them and the contempt proceeding can be initiated. इसीलिए आप ये देखिएगा, जैसे आपने एक केस देखा था, प्रिविलेजेस में इन्होंने काफी सारी पावर ले रखी है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने को मैंने एक एग्जांपल बताया था कि यूपी असेंबली के केस में हुआ था, जहां पे माइक उठा करके लोगों ने एक दूसरे को मारा था, उसमें सर्वर सब तोड़ डाले थे, पूरा विधानसभा तोड़ डाले थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, दे आर इम्यून विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट। तो वहां पे अगर किसी ने मार के किसी का सर भी, इसके पहले आपको मैंने जयललिता का केस बताया था, और मैंने आपसे कहा था थलाइवी मूवी देखना, उनको लिटरली मारा गया था विधानसभा के अंदर, और उसके बाद जो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं आऊंगी तो मुख्यमंत्री बन करके ही आऊंगी। सो दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ जयललिता। वो भी हुआ था तमिलनाडु की विधानसभा में, यूपी में हुआ है, कई बार हम लोग देख चुके हैं कि अलग अलग प्रदेशों की विधानसभाओं में और कई बार लोकसभा में भी ऐसी या राज्यसभा में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन मेंबर्स क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी क्लेम करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने एक रिसेंट एग्जाम्पल देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेके बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये जो ईवीएम्स हैं ये मैनिपुलेट होती हैं, इनको हैक किया जा सकता है, ये सब चीजें होती हैं। और बीच में एक ऐसा हुआ कि बिकॉज कंडक्टिंग इलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और इसको हम लोगों ने पहले देखा है जो लिली थॉमस के केस में। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, so it is presumed that we all must have faith in the election commission that they are conducting fair elections, लेकिन एक
मुद्दा उठाया गया, और मुद्दा क्या उठा? मुद्दा ये उठा कि ईवीएम्स हैक हो सकती हैं। उस समय अगर आप लोग को याद होगा, ये 2014 की बात है, 14 के आसपास की, इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का टाइम दिया आई थिंक, एंड दे इनवाइटेड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट प्लीज कम एंड शो दैट हाउ बेसिकली दीज ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। तो आपने देखा कि हाउस के बाहर लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी कहती थी कि नहीं, दे कैन बी हैक्ड, दे कैन बी हैक्ड, बट नन ऑफ देम, इवन इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला कि अगर आप आईआईटीएन को, किसी टेक्नोक्रेट को, किसी को भी लेके आना चाहते हो, आप प्लीज आओ और आप बताओ कि इसकी हैकिंग कैसे होती है। हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से या किस डिवाइस से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बिकॉज वी आर गिविंग गारंटी दैट ईवीएम्स कैन नॉट बी हैक्ड। तो वहां तो कोई गया नहीं, लेकिन एक और चीज हुई, आप लोगों को अगर याद होगा, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे राघव चड्ढा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विधानसभा के अंदर एक डमी ईवीएम ला करके ये दिखाने की कोशिश करी कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। तो वो डमी ईवीएम है, वो एक्चुअल ईवीएम नहीं है। आपने हाउस के अंदर उसको क्यों चुना? बिकॉज विद इन द हाउस यू कैन क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 105 विच इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फोर वॉल ऑफ द हाउस। तो इसीलिए उन्होंने जो जगह चुनी थी वो विधानसभा के अंदर की चुनी थी। दैट वाज द मेन रीजन वेर ही ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बेसिकली हाउ वी कैन हैक द ईवीएम। अदरवाइज मे बी if he was doing the same thing, going to do the same thing outside the four wall of the Delhi Vidhan Sabha, then in that circumstances it was maybe the election commission could also take any action against him, because he was trying to create a kind of disrepute against the stature of the constitutional body like election commission. तो क्यों चुना उन्होंने राघव चड्ढा ने? Because of article 105. So remember 105 gives a lots of power to the parliamentarians. आगे इसमें देखिएगा, in other respects, the power, privileges and immunities of each house of parliament and of the members of the committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the constitution, 44th amendment act 1978. इसका 3 और 4 हम एक साथ पढ़ेंगे. The provision of clause 1, 2 and 3 shall apply in relation to persons who by virtue of the constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of parliament or any committee thereof, as they apply in relation to members of parliament. इसमें एक चीज आप देखिएगा, एक्चुअली क्या है, जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं तो इसमें से आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट डिफाइंड एनीवेयर. पार्लियामेंट्री रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं जो कि बताते हैं कि जब ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता है या जब हाउस अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होंगे. लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस अगर कोई करता है तो उसको कौन कौन से पनिशमेंट दिए जाएंगे, किस सर्कमस्टेंसेस में कौन सा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए. जैसे मान लीजिए सस्पेंशन एक हो गया, एक रिप्रीमांड हो गया, एक एडमोनिश करना हो गया, क्या रिमूवल भी हो सकता है, क्या जेल भी भेज सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है. तो इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है. और जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ते हैं, देन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट इवन डॉक्टर अंबेडकर वाज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, क्योंकि अभी भी ये प्रिविलेजेस कहीं नहीं लिखे हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस. ही वांटेड पार्लियामेंट टू टेक डिसीजन ऑफ फिक्सिंग प्रिविलेजेस. मतलब जैसे जैसे परिस्थितियां आए आप उस हिसाब से निर्णय लो. एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड. ही सजेस्टेड दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. लेकिन इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए रॉबकॉप जिसको बोलते हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसको जो है बनाया गया, जो मैंने आपको बताया कि हाउ द बेसिकली द प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड. लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसा मान लीजिए वी हैव अडॉप्टेड दिस आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, जैसे आपकी ब्रिटेन जो है या यूके जो है, उसको हम कहते हैं कि वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. एंड ऑब्वियसली देयर दे फॉलो द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी.
तो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो वॉट एवर द पार्लियामेंट इज गोइंग टू डिसाइड, दैट इज going to be considered as the full and final thing. So remember, in the case of United Kingdom, the parliamentarians enjoys a lots of privileges. अभी आपने देखा वहां पे जो बोरिस जॉनसन को लेकर के बहुत सारा पंगा चल रहा है, जिनको बोजो कहते हैं, और उसका रीजन ये है कि जब पूरे कोविड सैंक्शन वहां पे लगे हुए थे, उस स्थिति में वो अपने कुछ ऑफिस स्टाफ और अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने पार्टी करी थी. So that is considered, because the whole country is locked down and he is enjoying party, so he is under severe criticism. तो वहां पे भी ये चल रहा है कि why Boris Johnson should not be punished, why some kind of action should be taken against him. So up to what extent the parliamentary privileges can be utilized, and in what circumstances the British Parliament can take decision again or can take action against the sitting Prime Minister of UK, Mr. Boris Johnson, that has to be decided by them. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया गया, बिकॉज वी नो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, we followed the same system. So parliamentary form of the government we decided to follow, but what privileges should be exercised by the इंडियन पार्लियामेंटेरियन, इसको लेकर के सब क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेकर के नहीं आती है, तब तक the parliamentarians of India will enjoy the same kind of privileges and immunities as it is enjoyed by the lawmakers of the British Parliament. तो जब तक संसद कोई privilege के लिए कोई legislation लेकर के नहीं आती है, तब तक क्या माना जाएगा, तब तक ये माना जाएगा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिन प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को पार्लियामेंटेरियंस एंजॉय करते हैं, उसी इम्यूनिटीज को इंडियन पार्लियामेंटेरियन भी एंजॉय करेंगे. सो रिमेंबर, देयर इज नो कंफ्यूजन, दैट इज स्टिल इट इज नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपरली दैट व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंटेरियन एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हाट काइंड ऑफ punishment should be given to those who are basically indulge or involve in any kind of contempt activity against the हाउस. तो इसको लेकर के अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. तो क्लेम क्या किया जाता है कि हमारे राइट वही हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के हैं. इसमें जो इसका 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2 and 3 shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of a house of parliament or any committee thereof as they apply to relation to the members of the parliament. कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का हिस्सा नहीं है, यानी he is neither the member of the Lok Sabha nor he is a member of the Rajya Sabha, but he appears because he has right to speak before the house. जैसे आपका एक होता है अटॉर्नी जनरल, वो जो है सदन में बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो सदन में बोल सकते हैं. तो अटॉर्नी जनरल इज एन एग्जाम्पल. या जैसे मान लीजिए किसी आपके सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट में रिमूवल की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उनको सदन में बुलाया जाता है, वो अपनी बात को सदन में किसी कमेटी के सामने या हाउस के सामने रखते हैं. सो दीज आर द पर्सन्स हु आर नॉट द member of either house of parliament, but remember, either anybody is appearing before any committee or otherwise allowed to speak before the house, then those people are also protected by the immunity which are available under the different provisions of article 105. तो 105 में प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है, इन लोगों को अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये जो है अवेलेबल है उन सारे मेंबर्स को जो कि पार्लियामेंट के किसी न किसी सदन के सदस्य हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट में बोलने के लिए अलाउड है. तो इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. अब थोड़ा सा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और देख लेते हैं. इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे केसेस डिस्कस करने के बाद हम लोग राजा रामपाल के केस पे आएंगे. इसमें एक चीज आप नोट करिएगा, जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हो, देन बेसिकली इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री privileges, there are basically 2 types of privileges जो मैंने अभी आपको बताए थे. The first privilege is the individual privilege and the second privilege is the collective privilege of parliament. तो individual privilege क्या होता है, वो हर पार्लियामेंटेरियन को इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल होता है. कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है, जैसे मैंने आपको कंगना रनौत या अर्नब गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने सदन की अवमानना करी है
और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं उसमें एक चीज आप याद रखिएगा, एक सांसद दूसरे सांसद की भी अवमानना कर सकता है, जैसे मैंने आपको आजम खान का केस बताया था। और दूसरा इसमें आप याद रखिएगा, किसी सांसद, एक सांसद की अवमानना बाहर का कोई व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे शायद इफ आई करेक्टली रिमेम्बर then this Arnav Goswami, he has made certain statements against Uddhav Thackeray, and some similar kind of a statement was made by Kangana Ranaut, जहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र को कंपेयर किया था पाकिस्तान की स्थिति से, and then the house decided to initiate a contempt proceeding against the house. तो यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जो बोलने वाले का स्टेटमेंट है, they are basically going to target a particular person or they are going to target the entire house. But in both the circumstances, if the house feels, then in that circumstances the contempt proceeding can be initiated against anyone. तो इसमें इनको जो immunities होती हैं वो क्या क्या होती हैं आप देख लीजिएगा। जो इंडिविजुअल को है, once we have certain things we have discussed like फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया। दूसरा इनका ये होता है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आज सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है तो आज से 40 दिन पहले तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सदन जब तक चलेगा तब तक अरेस्ट नहीं हो सकते, और कार्रवाई खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनका अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो 40 days earlier during the session and 40 days after the session. So no MP shall be arrested in a civil case 40 days prior and 40 days after the house is over, session of the house is over. लेकिन criminal cases के केस में एक चीज आप याद रखिएगा, in the case of criminal cases any arrest within the four wall of the parliament is not permissible. ये संभव नहीं है कि आप उस कितना भी बड़ा कांड करके आए हो, आप फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर या सदन के अंदर उसका अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, he will lose his immunity, and that's why in several cases we have seen that the sitting MPs have been arrested for for the question of, अभी आपने देखा था यूपी में एक सिंगर का केस हुआ था, MPs and MLAs. So if there are certain charges against them, the criminal charges or the criminal charges, then in that circumstances obviously they can be arrested, but not within the house but outside the four wall of the parliament or the legislative assembly. इसके बाद ये है कि speaker or the chairman shall be informed of the reason for such arrest. इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि जब भी उनको अरेस्ट किया जाता है तो एक इंटीमेशन जो है वो दिया जाता है किसको, स्पीकर को, कि these people are going to be arrested. तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल को दिया गया। इसके बाद आप जब देखते हो इसमें जो कलेक्टिव प्रिविलेज की बात होती है उसको, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि कलेक्टिव प्रिविलेज में बाहर का कोई आदमी अगर कोई चीज बोलता है, then in that circumstances the proceedings can be initiated against them, but what kind of action can be taken against them, the law is silent over it. So we will take up certain cases which are very much important so that you could better understand that how basically the parliament enjoys these kinds of privileges and what is the meaning and what is the purpose of breach of parliamentary privileges. इसमें एक बड़ा फेमस केस है जिसको कि सर्च लाइट केस भी कहते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस केस। सर्च लाइट केस क्या है इसको आप देखिएगा, केस का नाम लिख लीजिए, MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। AIR 1959 SCR SC 395, AIR 1959 SC 395। आप में से जो लोग मीडिया लॉ पढ़ते हैं ना, वहां पे भी आप लोग इसको पढ़ोगे। तो MSM शर्मा वर्सेस कृष्णा सिन्हा, AIR 1959 SC 395। इस केस में क्या है, जो मिस्टर MSM शर्मा हैं, इनको पंडित शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, एंड पंडित शर्मा इज बेसिकली अ रिपोर्टर। ये एक रिपोर्टर है MSM शर्मा जो है। तो इन्होंने क्या किया कि एक स्पीच होती है, इसको आप समझना कि क्या इस केस में हुआ है। एक स्पीच होती है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 मई 1957 को, इन द कोर्स ऑफ द जनरल डिस्कशन। जैसे आपका बजट सेशन में भी आप देख रहे हो ना, जैसे जनरल डिस्कशन होता है, उस तरीके का जनरल डिस्कशन वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द बजट सेशन इन द ईयर 1957-58 की बात है ये। एक कांग्रेस मेंबर जो थे असेंबली के, उन्होंने एक स्पीच दी
और उसमें उन्होंने बोला कि he made in a way one of the bitterest statement against the functioning of the CM as the administrative head of the state. तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जो आपत्तिजनक बातों की श्रेणी में आती थी. इसको लेकर के सर्च लाइट ने एक न्यूज रिपोर्ट पेश की जिसमें कि उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन कर दी. जब उन्होंने सारी चीजें मेंशन करी, देन द हाउस बेसिकली डिसाइडेड टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर MSM शर्मा. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों की गई थी? क्योंकि उसको एक्सपंज किया गया था, यानी वो रिकॉर्ड में नहीं जाना था और उसको मिस्टर शर्मा ने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया. जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की शुरुआत हुई तो मिस्टर शर्मा से बोला गया, यू विल अपीयर बिफोर द कमेटी ऑफ द हाउस, आपको आना पड़ेगा. सो अगेंस्ट द ऑर्डर, अगेंस्ट दिस नोटिस ऑफ द committee, Mr. Sharma decided to move to the Supreme Court on this basis that he has right to freedom of speech and expression, and if the House is going to curtail his right to freedom of speech and expression in the name of his privileges, then in that circumstances, basically they are violating his right to freedom of speech and expression. But remember, in that case, the Supreme Court did not accepted his contentions, and it was finally decided by the Supreme Court that the power or the contempt power of the House is much larger in comparison to the right to freedom of speech and expression of the citizens, which is available to them under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन विच आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2. क्योंकि देखिए, सब बोलने में एक चीज होता है सच बोलना, ठीक है. जो मिस्टर शर्मा ने छापा वो सच था. सच क्यों था? क्योंकि सीएम के अगेंस्ट में एक एमएलए ने वो बात बोली थी. तो जो भी न्यूज़पेपर छाप रहा है वो मनगढ़ंत नहीं छाप रहा है. वो क्यों छाप रहा है? बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद इन द हाउस. लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हैं, तो मैंने जो आपको पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की बात करी, उसमें जब स्पीकर कहता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो न केवल पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए या लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सदन के बाहर भी इस बात को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा. तो इसमें उन्होंने बोला कि मैंने तो सच छापा, तो सच छाप करके मैंने क्या गलत किया? जो इन्होंने बोला मैंने वही छाप दिया. तो मेरा जो एक्शन है, how basically that is going to violate the rights of the parliamentarian, and if they are going to stop me from publishing anything, then basically they are going to violate my right to freedom of speech and expression. But remember, here in this case, the Supreme Court has decided that in the case of conflict between 19(1)(a) of a citizen and 105 of the Indian Constitution, the protection should be given to the privileges of the parliamentarians. तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को अपर हैंड दिया जाएगा, और अपर हैंड देने का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव वायलेटेड समथिंग व्हिच इज नॉट according to the privileges of the parliament, then in that circumstances the parliament may initiate any kind of proceeding against such members. तो यहाँ पे मिस्टर MSM शर्मा को उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जिसकी वो बात कर रहे थे, that was not protected by the Supreme Court in this case. So that is a case where basically the Supreme Court has very categorically and clearly mentioned that the privilege of the parliament is much more important in comparison to the right to freedom of speech and expression of a citizen or of the media. तो इसमें आपने देखा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जो है प्रोटेक्शन दिया गया, ना कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मीडिया. के एक छोटा सा केस और देखेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे. एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि विच इज अ वेरी हाईलाइटेड केस एंड विच इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड केस ऑल्सो. द नेम ऑफ द केस इज केशव सिंह केस. ये अपने आप में बहुत यूनिक केस है केशव सिंह का केस, क्योंकि यूपी जो है वो फेमस है इस तरीके की चीजों को करने के लिए. तो ये केस उत्तर प्रदेश से है. उत्तर प्रदेश में मिस्टर केशव सिंह ने क्या किया कि एक न्यूज छापी और उसमें उन्होंने कुछ लिखा. अब क्या लिखा उसमें मैं नहीं जा रही. उनके खिलाफ
जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको यूपी असेंबली ने ये माना कि ये सदन की अवमानना है। जब ये कहा गया कि सदन की अवमानना है तो ये हुआ कि व्हाई द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर केशव सिंह। तो अब क्या हुआ, जो कमेटी बनी, जो स्पीकर हुए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया मिस्टर केशव सिंह के अगेंस्ट में। अब ये अनप्रेसिडेंटेड है कि क्या स्पीकर अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है क्या? तो क्या कहा गया कि इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दो। केशव सिंह के एक मित्र थे, वो एक पिटिशन लेकर के हाईकोर्ट के सामने आए और उन्होंने हाईकोर्ट को बोला कि केशव सिंह को अपनी बात को डिफेंड करने का ना तो मौका दिया गया और ना ही उनको बताया गया है कि एक्चुअल में व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। ये भी नहीं बताया गया कि उनके अगेंस्ट में क्या एलिगेशन है। तो इसके कारण से इनको इमीडिएटली बेल पे रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाए। हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या किया, उन्होंने बोला कि चूंकि मैटर की जो ग्रेविटी थी उसको देखते हुए, यानी कि हल्का मैटर था, हैवी मैटर था, और जो केशव सिंह को ये प्रॉपरली नहीं बताया गया था कि व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट हिम, द हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिलीज केशव सिंह ऑन इंटरिम बेल। उनको इंटरिम बेल पर रिलीज करने का ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने पास कर दिया। जो सदन है, यानी जो विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, उसको ये लगा कि हमारे ऑर्डर को हाई कोर्ट ने कैसे सुपरसीड कर दिया। तो दोबारा विधानसभा बैठी और उसमें इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना गया और एक नया ऑर्डर पास किया गया कि सिर्फ केशव सिंह नहीं, वो वकील जो हाई कोर्ट में गया और 2 जज जिन्होंने केशव सिंह के फेवर में ऑर्डर पास किया, इन सब के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज एन अनप्रेसिडेंटेड केस where the assembly is going to the judicial act of the judges, वो भी हाई कोर्ट के। तो ये दोनों हाई कोर्ट जजेस जो थे, ये अरेस्ट से बचने के लिए दोबारा हाई कोर्ट के पास गए और हाई कोर्ट ने बोला कि आप इन दोनों को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे the legislative assembly of Uttar Pradesh, they has taken a little bit back and they have modified their order, but this was a much highlighted case because this is a very important case in this regard, that important issue is what is the extent and what is the limit of the parliamentary or the legislative privileges of the state assemblies and the parliament। क्या उसकी लिमिट क्या है? क्या वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है या क्या हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है? इसको लेकर के द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर लीगल एडवाइस कि आप ये बताओ कि पार्लियामेंट का प्रिविलेजेस कहां तक है, और अगर वाइल एक्सरसाइजिंग देयर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली or the parliament is going to take any action against anyone, then in that circumstances whether that decision of the house can be reviewed by the court or not या फिर the parliament is supreme in its area and their decision cannot be reviewed by any competent court of the country. So this matter was sent back to the court, Supreme Court, for their legal advice. इसको और बाकी इस केस में आगे क्या हुआ, मतलब राजा रामपाल का जो मेन केस है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा। हार्दिक, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, सेक्शन 105 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ था कि एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट ही शैल नॉट बी लायबल टू एनी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स। तो मैम जैसे कोई पॉलिटिकल विप इम्पोज होता है तो उस सिचुएशंस में क्या वो एक पर्टिकुलर वे में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना उस लीडर से कि वो वोट डालेगा, तो अगर उस चक्कर में अगर कोई इम्यूनिटी या इनकी प्रिविलेजेस किसी तरीके से हैम्पर होती है, मुझे वो जानना था मैम। उसमें क्या होता है ना, आपका वोट वैलिड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एमपी हूं, मैंने क्रॉस वोटिंग से लोग क्यों डरते हैं, वोट इनवैलिड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपके अगेंस्ट में बाद में एक्शन ले लेती है ना, तो फिर वो उनका एक्शन होगा। जैसे पार्टी से निकाल दिया, आपने यहाँ देखा था ना, एक गिन्नी या बिन्नी करके थे, इसमें को मैं कभी डिस्कस करूंगी एंटी डिफेक्शन लॉ जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, क्योंकि वोट डालना उसका प्रिविलेज है। सपोज मैं जीत करके आई तो ये कोई जरूरी है क्या कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो भी मेरी आइडियोलॉजी है या जो कुछ भी वो सामने ला रही है मैं उसी को सपोर्ट करूं? मे बी आई एम नॉट एग्री। So as a parliamentarian, I can definitely exercise my right to freedom, right to cast my vote. तो उसमें क्या होता है, वोट दे करके आपका वोट वैलिड हो जाता है। लेकिन जब आप वोट देने के बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टी को पता चलता है ना कि आपने क्या किया,
then in that circumstances it is up to the political party that whether they are interested in taking any action against you or not. कई बार आप लोग देखते हो ना कि कोई सत्ता में रह करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में लगातार बोलता रहता है. ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है. बीजेपी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कांग्रेस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जिस पार्टी में आप हो, आप उसी के अगेंस्ट में बोल रहे हो और लगातार अपने लोगों को जो है आप अटैक कर रहे हो, अपनी पार्टी को अटैक कर रहे हो. तो उसमें आपने कई बार देखा होगा ना कि वो लोग, जो पार्टी होती है ना, उनके खिलाफ जल्दी एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उनकी सदस्यता पे ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. वो आप सिर्फ पार्टी की सदस्यता से आप उनको निलंबित करते हो, तो असर जो पड़ता है ना वो फ्यूचर पे पड़ता है. उस समय जो आप वोट कास्ट करते हो या जो क्रॉस वोटिंग करते हो, वो वोटिंग एब्सोल्युटली वैलिड होती है. तो पॉलिटिकल पार्टी का फिर ये डिस्क्रिशन होता है कि उन्होंने मान लो व्हिप इशू कर दिया और उसके बावजूद आप नहीं आए, या आए तो पार्टी लाइन पे आपने वोटिंग ना करके अपने मन से वोटिंग करी है. सो दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट वेदर दे वांट टू टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू और नॉट. कई बार नहीं भी लेते हैं, कई बार ले भी लेते हैं, लेकिन वोट जो उन्होंने आपने दे दिया वो वोट वैलिड रहेगा. तो मैम अगर विप है वो हो सकता है पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हर वक्त इम्पोज कर सकते हैं या केवल क्रूशियल एस्पेक्ट्स पे ही वो विप? देखो, वो उनकी पार्टी की वो होती है, वो पार्टी का प्रिविलेज होता है. विप जो होता है ना, वो पार्टी का प्रिविलेज होता है. तो नॉर्मली जब कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आने वाला होता है, जैसे कोई ऐसी चीज जिसमें नाक लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टी की, या उनको लग रहा है कि सत्ता पक्ष को किसी भी हालत में इसको पास नहीं कराना चाहिए, उस कंडीशन में विप जारी करते हैं. तो आपने उसमें देखा होगा लोग स्टेचर पे आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी से कि भैया हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आ सकें, तो हम आए कि ना आए. अगर वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको पार्टी ने एग्जेम्प्ट कर दिया तो ना हो, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं किया तो आपको आना पड़ेगा. और मान लो विप जारी किया और आप नहीं आए, देन दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट वेदर दे वांट टू टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू और नॉट. राइट मैम, अंडरस्टूड. थैंक यू मैम. ठीक है. यस मैम. हाँ साहिल बताओ. मैम मैम लाइक आप जो बता रहे थे मेंबर जो प्रिविलेज लेते हैं पार्लियामेंट का, तो मैम जैसे उनको अरेस्ट नहीं कर सकते विद इन द पार्लियामेंट मैम, मतलब जो उसकी वो विद इन पार्लियामेंट के अंदर. तो इसीलिए मैम कई बार कुछ केसेस होते तो हम देखते हैं नेता लोग मैम जाते हैं सीधा पार्लियामेंट में जाके छुप जाते हैं. छुप नहीं सकते ना, पार्लियामेंट में कितने दिन छुपोगे. पार्लियामेंट में अगर अरेस्ट करना ना, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में है ना, पुलिस बिना जो है अथॉरिटीज के परमिशन के एंटर नहीं कर सकती, वैसे वहां पे पार्लियामेंट के अंदर आपका अरेस्ट नहीं हो सकता. पर इसका मतलब ये नहीं है, यही तो एक्चुअल में इसमें सवाल है, इसलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट क्या अपराधियों के छुपने की शरण स्थली है, या पार्लियामेंट जो है आपको पार्लियामेंट्री एक्शन जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड या बिलीव्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे आपको इम्यूनिटी देती है. आगे मैं तुम लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से मीडिया को एग्जेम्पशन दिया गया. फिर मिसेस गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने कैसे सारी पावर दोबारा अपने हाथ में लेकर के सारे मीडिया वालों को बंद करके सारे एमपीज को जेल में डाला. तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, वो आपको जो इम्यूनिटी है, इसका मतलब आप छुप नहीं सकते हो, लेकिन अंदर, क्योंकि कल मैं मंडे को मैं डिस्कस करूंगी, आप लोगों ने एक बड़ा फेमस केस सुना होगा कैश फॉर वोट, और एक फेमस आपने सुना है कैश फॉर क्वेश्चन. ये दोनों केसेस मैं डिस्कस करूंगी जिसमें पार्लियामेंट के अंदर में नोट लहराए गए. एक तो ये केस, और दूसरा जब नरसिम्हा राव को लगा कि उनकी सरकार गिरने वाली है तो 10 सांसदों को रिश्वत दी गई थी कि वोटिंग जब होगी, जो अभी हार्दिक ने पूछा, तो आप वोटिंग जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के फेवर में करोगे. और वो केस बाद में खुला जिसमें आपने देखा शिबू सोरेन का नाम भी आया था. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और जो डिसाइड किया वो सही था कि गलत था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें ना गुलजार, इसमें याद रखना, पार्लियामेंट या हाउस इसलिए नहीं होता कि आप कोई क्राइम करके वहां पे छुप जाओ, लेकिन हाँ अंदर जो है वो पुलिस घुस करके अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी चीजों में क्या होता है ना, पार्लियामेंट की खुद की भी नाक लगी हो. आप अंदर से चाहे देखो, एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने बोला, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी कि अपराध करने से आदमी नहीं डरता, अपराध खुलने से डरता है. तो समझ में आया ना. तो अपराध खुलने से डरने का मतलब क्या हुआ कि चाहे आप जो भी कर रहे हो, पार्लियामेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कभी नहीं चाहती कि उसके किसी पार्लियामेंटेरियन के कारण लोगों का उसमें बिलीफ कम हो. इसीलिए ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को नॉर्मली एनकरेज नहीं किया जाता. तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? यस मैम, थैंक यू. ठीक है. हाँ साहिल बताओ.
मैम मेरा क्वेश्चन था, जब यूपी असेंबली